Hello students. So in the previous video we understood what is distance, what is displacement. We also saw a few examples and then we came to the conclusion or the true statements. Two true statements we understood. Now we will start next topic, that is speed and velocity. Okay. So what is meant by speed? We will see the definition, we will see the formula, we will see how to calculate the unit of the speed. Okay, what is the SI unit, what is the CGS unit, and same thing we will follow for velocity. Okay, so every definition there is a concept behind it, right? So we will not directly go to the definition, we will go definition along with the example and the real story. Okay, so what is speed? So speed is nothing but total distance traveled by an object. Object could be anything, it can be cycle, it can be you, it can be vehicle, it can be any bird, right? So what is the object? Object can be anything, and the object travels the distance, right, from one point to another point. So over here we need to calculate the speed of that object. ओके अगर बर्ड है तो कौन से स्पीड से जा रहा है, अगर मैं हूँ तो मैं कौन से स्पीड से जा रहा हूँ, अगर व्हीकल है तो व्हीकल कौन से स्पीड से जा रहा है. ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट? सिंपल है. द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. अभी हर एक को तो सेम टाइम नहीं लगता, गाड़ी को डिफरेंट टाइम लगता है, आदमी को डिफरेंट टाइम लगता है, आदमी में भी उनको डिफरेंट टाइम लगता है. इफ वन यंग बॉय इज देयर, ओके, ही टेक्स लेस टाइम एज कंपेयर टू द ओल्ड मैन और ओल्ड पर्सन, राइट? सो इसमें भी डिफरेंस रहता है. तो इन अ यूनिट टाइम, राइट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बट वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कुछ तो टाइम लगता है. ये डिस्टेंस एंड टाइम का जो रेशियो रहता है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं. बट लेट्स नॉट डायरेक्टली गो थ्रू द डेफिनेशन, लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल. ओके, सो लेट्स से the student, okay, in a 9th standard is living in a home, and in the morning he wanted to go to school. Okay, at 7 a.m. he started his journey, and this is the road actual path which that student has to travel to reach to the school. So he started his journey by 7 a.m. and he reached to the school by 7:10 a.m. Now just tell me guys, how much time he took to reach to the school? That's great, 10 minutes. Okay, and how much distance he traveled? Over here it is given 1200 meter, right? So the distance, why I am telling this a distance, because this is the actual path which that student is traveling or going to travel or had traveled. Okay, so this is 1200 meter. Now listen guys, over here the time is given in a minutes, but in the earlier standard also we saw that the measurement like SI unit and CGS unit. So measurement is a distance. हम लोग distance किस में measure करते हैं? मीटर में. बेसिकली हम लोग यही प्रेफर करते हैं, CGS का ज्यादा प्रेफर नहीं करते. So we'll focus over here only. Distance we measure in a meter and centimeter. So we'll focus over here meter. तो हमारा डिस्टेंस मीटर में है क्या? यस, करेक्ट, मीटर में है, तो नो प्रॉब्लम. टाइम हम लोग किस में कंसिडर करते हैं? सेकेंड. ऐसा यूनिट सेकेंड ही है, बट अभी हम लोग को यहाँ पे क्या मिला है? 10 मिनट्स. ओके, सो अगर मिनट्स में दिया है, सो व्हाई टू वरी, विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेकेंड. ये तो सबको पता रहेगा कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स है, तो 10 मिनट्स मतलब 10 into 60. ओके, सो विल कीप इट लाइक दैट ओनली, अदरवाइज यू कैन डू लाइक दिस. ओके, कोई भी एक रोकेगा तो भी चलेगा. तो टाइम हमारे पास है. अभी हमारे पास क्या है कि ये जो बंदा है, द स्टूडेंट टेक्स 600 seconds टू ट्रैवल 1200 मीटर. मतलब इतने मीटर काटने के लिए एक मीटर ही काटता है ना वो. 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर करके 400, 500, 600, बाद में 1200 मीटर पे पहुंचता है, तब वो स्कूल जाके पहुंचता है, करेक्ट? सो 1200 मीटर ट्रैवल करने के लिए उसको 600 सेकेंड लगते हैं. तो मुझे बताओ
वो एक सेकेंड में कितना मीटर चला, दैट इज माई स्पीड. ओके, सो स्पीड मतलब क्या है नाउ, हाउ मच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट travels in 1 second. यही तो मेरा स्पीड का कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो स्पीड कितना रहना चाहिए, तो ये मैं आपको बताता हूँ स्पीड का फॉर्मूला से. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 1200, टाइम कितना लिया 600, जीरो गया जीरो गया जीरो गया जीरो गया. हाउ मच इट इज नाउ 12 डिवाइड बाय 6, 1 जा 2 जा, सो 2 डिवाइड बाय 1. करेक्ट. 2 क्या है, डिस्टेंस है, मतलब ये मीटर में है. टाइम क्या नीचे है ना, तो ये 1 क्या है टाइम, तो क्या है सेकेंड. तो मुझे बताओ ये क्या हुआ. लेट्स कम ओवर हियर. ओके, लेट्स कम ओवर हियर. तो यहाँ पे मुझे क्या समझ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर क्रॉस किया इन 1 सेकेंड में. करेक्ट. तो मुझे बताओ 2 सेकेंड में कितना क्रॉस किया, 4 मीटर. राइट. 3 में कितना किया 6 मीटर. चलो आगे. 4 सेकेंड में कितना किया, डबल ना, 8 मीटर. 5 में कितना किया 10 मीटर. ओके, यहाँ पे आओ नीचे. 6 सेकेंड में कितना किया 12 मीटर. अगर 6 सेकेंड में 12 मीटर किया तो 600 सेकेंड में कितना किया रहेगा. अगेन अगर 6 के बाद में 2 जीरो लगाता हूँ तो 12 के बाद में मुझे 2 जीरो लगाने. समझा कि नहीं. सो फाइनली ये फॉर्मूला मुझे क्या बताता है, जितना भी डिस्टेंस क्रॉस करो, कितने टाइम में किया, ऑल टुगेदर का मैं यहाँ पे डिवीजन लेता हूँ. डिवीजन लेने से क्या होता है, डिवीजन लेने से 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका रेशियो मिलता है. दैट्स वाई स्पीड हम लोग को क्या बताता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का 1 सेकेंड में ट्रैवल करने का, 1 सेकेंड में उसने कितना ट्रैवल किया वो डिस्टेंस बताता है. करेक्ट. सो आपने गाड़ी में देखा रहेगा, राइट. ऐसे मीटर देखे रहेंगे, यहाँ पे 10, 20, बाद में यहाँ पे 80 तक रहता है. ये क्या रहता है पता है, ये इसका मतलब यही रहता है कि अगर मेरा कांटा यहाँ पे है, लेट्स से 20 के यहाँ पे, तो मेरा गाड़ी का जो एक्सेलरेटर दबाता हूँ जब वो कांटा यहाँ पे आता है, तो इट सेज कि इफ आई गो विद दिस स्पीड, तो मैं 1 आवर में 20 किलोमीटर जा सकता हूँ अगर मैं यही स्पीड से गया तो. बट हमारा स्पीड वैरी होता जाता है ना, कम ज़्यादा कम ज़्यादा. ओके, समझे. नाउ विल कम टू द टॉपिक स्पीड. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हम लोग ने एग्जांपल में लिया था, राइट, बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. कितना टाइम लिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 1200 और यहाँ पे लिखा था 600, राइट. सो इट इज कॉल्ड द स्पीड. तो स्पीड हम लोग को क्या हेल्प करता है, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ 1 सेकेंड. तो एक्चुअली हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है, हाउ मच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन 1 सेकेंड, वही हम लोग को स्पीड बताता है, राइट. सो डेफिनेशन क्लियर. फॉर्मूला इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड. ओके, अभी मुझे बताओ, हम लोग को स्पीड का यूनिट निकालना है. हम लोग को डिस्टेंस का यूनिट पता है, दैट इज मीटर. यहाँ पे मीटर लिखते हैं, राइट, डिवाइड बाय. इसका हम लोग को यूनिट पता है, दैट इज सेकेंड. बट हम लोग को स्पीड का यूनिट नहीं पता. अगर स्पीड का यूनिट नहीं पता, नो नीड टू वरी. इफ वी नो द डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ टाइम, वी कैन इजीली कैलकुलेट द यूनिट ऑफ स्पीड. ओके, हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ स्पीड. सी, अगर ऊपर डिस्टेंस है
तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, राइट, तो यहाँ पे भी डिवाइड का साइन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ऊपर डिस्टेंस का है ना, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ डिस्टेंस आएगा। डिवाइड के नीचे कौन है, टाइम, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम आएगा। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस हमारे पास क्या है, मीटर, डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकेंड। तो ये किसका यूनिट रहा, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं m डिवाइड बाय s। ये भी लिखना अच्छा नहीं लगता, दैट्स व्हाई हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड मीन्स व्हाट, पर 1 सेकेंड। ओके, one more thing I need to tell you guys about speed is, let's consider my vehicle speed is 6 meter per second, means my vehicle is crossing 6 meter per second. Okay, but where that 6 meter per second is going, toward east or toward west, toward north or toward south? A big question mark, right? I cannot tell where I am exactly going with this 6 meter per second ka speed. Okay, along with this speed, where I am going I cannot tell you exactly. So this is the concept of speed, where speed always tells you about magnitude which is 6 meter per second. Okay, but speed cannot tell you the direction, okay, where it is going, where the object is going. Okay, that's why speed is called as a scalar quantity. Okay, where we cannot get exact idea about direction, but we can get the idea, the clear idea about magnitude. Okay, in the speed, in the concept of speed. Okay, now after the speed, let's start with the velocity. Okay, now in the speed there was a big question mark, right, where the speed is where the object is exactly going with this speed, right? So this problem gets solved with the velocity, because velocity is equal to speed plus direction. Means what? It is not exactly the equation. Okay, what I need to tell you that velocity is what? The concept, the mixed concept of speed and direction. Means what? Suppose my vehicle is going, right, so this is A point, this is B point. I am going from A to B. Okay, according to the map, let's say कि this is north direction, so नीचे वाला कौन सा direction रहेगा, ये वाला south वाला direction. So what I'll tell you is, same, my vehicle is going with 6 meter per second to south. Okay, now this is what, 6 meter per second to south. Over here I have mentioned magnitude and direction. So this is nothing but velocity. Okay, so this is my velocity. Okay, so this is velocity, 6 meter per second to south. Okay, if my vehicle now move from B to C, where that C is going, toward east, right? So my second velocity, okay, I could say velocity 2. Okay, velocity 2 is what, from B to C. How could be, I can change my speed, right? Let's consider कि 5 meter per second से मैं जा रहा हूँ, okay, to east. So over here in the velocity वाला concept, we come to know the magnitude plus direction. Means यहाँ पे speed में हम लोग always tells you about magnitude, but in terms of velocity always tells us about
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, क्लियर. सो जहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा, ओके, विल कंसिडर दिस इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी. ओके, नाउ विल कम टू द definition. Okay, velocity is what? The distance traveled in a particular direction, right? Distance traveled in a particular direction. ये कॉन्सेप्ट आपने पहले वीडियो में सुना है कि मैं एक डिस्टेंस क्रॉस करता हूँ बट वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करता हूँ, राइट? ओके, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज सी, this is my actual path, right? But this is my position A, this is my position B. Where I got displaced from A to B, correct? A to B. Okay, so this is the minimum distance, but in the minimum distance where I get transferred toward east, right? Toward east मतलब A to B में कितना सरका? So by this distance where I went toward east. ओके, तो ये है मेरा एक्चुअल पाथ जो डिस्टेंस से रिलेट करता है, एंड ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है स्ट्रेट वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है. और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, मतलब कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ. ओके, सो अगर मैंने ये प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं किया है तो जस्ट कीप इन माइंड कि डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते. ओके, बट डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन देखते हैं. मीन्स मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, नाउ माई पेंसिल एज ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड ईस्ट. ओके, टूवर्ड ईस्ट बाय दिस मच डिस्टेंस. ओके, तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट कि अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे एग्जैक्टली डिस्प्लेस्ड हुआ. ओके, एंड व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसका कॉम्बो को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ओके, यहाँ पे भी हम लोग ने क्या बोला है? डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कहाँ पे वो गया है, राइट? सो दिस कम्स अंडर डिस्प्लेसमेंट. सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट. ये कौन ट्रैवल करेगा? ये डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा? बट ऑब्वियस ऑब्जेक्ट. कितने टाइम में? कुछ तो यूनिट टाइम, हम लोग को टाइम नहीं पता है, कुछ तो यूनिट टाइम में इट ट्रैवल्स, राइट? इज कॉल्ड द वेलोसिटी. सो इन द वेलोसिटी the displacement that occurs in the unit time. Displacement मतलब क्या? The path traveled by an object in a particular direction. The path traveled by an object in a particular direction, उसको हम लोग बोलते हैं displacement. And the displacement that occurs in the unit time is called velocity. That's why हम लोग velocity में क्या mention करेंगे? Displacement upon time. Okay, displacement upon time, and that displacement is related to the that displacement is equal to the distance traveled by an object in a particular direction. For example, you are going toward east by 20 meter and you are traveling 20 meters, right? So my displacement will be 20 meters toward east. Okay, now you took a turn. Okay, now you move to the, let's say, to the north. Okay, now from east to north you started your journey by 10 meter. So what I could say, you just displaced by 10 meter in north. So this is my displacement, right? Distance travel in a particular direction, 10 meter travel in a north direction. समझा? So displacement upon time. क्लियर? तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी. तो वेलोसिटी में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? वेलोसिटी में हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम लोग ये कंसिडर करते हैं. क्लियर? तो इसको ही हम लोग बोलते हैं, ये जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी. क्या? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस. ओके, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं. बट उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू द स्पीड, वेरी मच सिमिलर टू द स्पीड. ओके, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा तो देखते हैं हम लोग. यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम.
तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। सेम यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग किस में मेजर करते हैं भाई, हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ टाइम हम लोग किस में मेजर करते हैं, हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। तो आ गया मीटर पर सेकेंड। सेम इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्पीड। ओके, बट यहाँ पे हम लोग मेंशन ज़रूर करेंगे कि हमने 6 मीटर पर सेकेंड, हम लोग 6 एक एग्जांपल ले रहे हैं, 6 मीटर पर सेकेंड इतना डिस्टेंस टुवर्ड नॉर्थ ट्रैवल किया। मतलब इन शॉर्ट आई नीड टू टेल यू कि स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब क्या है। तो स्पीड मतलब 6 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी मतलब 6 मीटर पर सेकेंड टू ईस्ट। ओके, टू ईस्ट, समझा। तो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। तो ये है वेलोसिटी, ये है स्पीड। ओके, नाउ होप यू अंडरस्टूड, बट विल हैव टू कवर the basic difference between speed and velocity. Okay, that is a task for you. Okay, I'll give you the key points. Just take an example. Okay, so speed and velocity में आपको क्या करना है, this is a task for you. Okay, so पहले तो आपको दोनों का definition देना है. Okay, बाद में ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। दूसरा चीज़ है, इसका आप एग्जाम्पल देना है। जैसे मैंने मेंशन किया ना, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड टू ईस्ट। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, आपके लिए टास्क है खाली 3 ही डिफरेंस लिखने हैं एज ऑफ नाउ। ओके, ये आपका टास्क है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दिस। ओके, बट दिस इज अ टास्क फॉर यू, जस्ट थिंक फ्रॉम योर साइड एंड जस्ट फिनिश इट बाय टुडे ओनली। ओके, थैंक्स।